Okay students, in the last class we were discussing about equal area criteria and what is its significance for transient stability in the power system stability area. So in the today's class we will derive its equation for equal area criteria. So in equal area criteria the main theme is that area of acceleration should be area of deceleration. I mean, after the disturbance, you know that because of the disturbance your generator rotor gains acceleration. So if your machine has to be in the stable condition, so the amount of acceleration it gains, it should be equal to the amount of deceleration it gains ultimately. If the acceleration is more than deceleration, so ultimately your machine will go into runoff condition and it will become unstable. So for having a area of acceleration equal to area of deceleration, what we do is that we will derive an equation that basically indicates you how this area of acceleration is equal to area of deceleration and what is the binding equation that basically explains this. So here is the equation that is written over here. So I will explain how we get this equation using the swing equation. So in the entire power system stability, maybe you are aware of this thing right now, that this is only the swing equation that basically used for establishing the small signal stability. We have derived the equation for small signal stability using the swing equation. We are now again deriving the transient stability using the swing equation. So swing equation has a main significance in determining the different scenarios of power system stability. So what is swing equation again? You are aware of this. This is the swing equation written over here. Pi h over pi f naught d square delta by dt square is equal to Pm minus Pe, and Pm minus Pe is equal to Pa. You know that it is equal to acceleration power. So now what we do is that we will multiply this h over pi f naught towards this side of the equation. Now the equation has become d square delta by dt square on the left hand side, and on the right hand side this pi h over pi f naught, now as it is multiplied, cross multiplied this side, so it has become pi f naught over h times Pm minus Pe. So in the next step what we do is that we will multiply both sides of this equation with 2 times of d delta by dt. So here we have multiplied this equation with 2 times d delta by dt, and it has become 2 delta by dt times d square delta by dt square, and on the right hand side we have 2 pi f naught over h, and we have replaced from here d delta by dt, we have written this thing over here, and only you can see 2 over here for this 2 pi f naught over h Pm minus Pe times d delta by dt. So then after this step what we do is that we are simply writing this equation in the form of this. So we have written this in the form of this. Just look it over here. This may be written as d by dt d delta by dt square is equal to 2 pi f naught over Pm minus Pt. Fine. So now what we do is that we now write this equation in the form of d, and this d has gone, it is left with d by d delta by dt whole square 2 pi f naught over h Pm minus Pe d delta. Fine. So now after having this equation, what we do is that we actually integrate both sides of this equation. After having an integration, this d has gone, I mean the integration has replaced with this d, and we are left with d square d delta by dt square, and on the right hand side we are with 2 pi f naught, and integration is over Pm minus Pe d delta. Now after having this, we have now the integration डेल्टा नॉट टू डेल्टा. आप देख रहे होंगे कि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक जा रही है, डेल्टा नॉट से डेल्टा. डेल्टा तक क्यों जा रही है? अगर आप ये देखें, ये जो आपकी इक्वल एरिया क्राइटेरिया की जो कर्व है, अगर आप ये देखेंगे इक्वल एरिया क्राइटेरिया की जो ये कर्व है, आप इसको पावर एंगल कर्व जिसे हम कहते हैं, इट गोज फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द integral limitations from delta naught to delta, because we have a power angle, a maximum power angle from delta naught to delta. So therefore we have applied this limits here. So after this what we do is that उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप के बाद हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर अंडर रूट ले लिया.
अंडर रूट लेने से क्या हुआ, यहाँ का जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एफ नॉट ओवर एच डेल्टा नॉट डेल्टा पी एम माइनस पीई डी डेल्टा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हुआ, राइट यहाँ पे देखिएगा हमने इसके बाद क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया। इस स्क्वायर रूट से क्या किया, स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, इस पे हमारे पास अंडर रूट आ गया। ठीक हो गई बात। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद देखिएगा एट स्टेबल कंडीशन। अच्छा ये जो इक्वेशन है किस चीज की इक्वेशन बन गई है, अगर आप इसे गौर से देखें, ये है डी डेल्टा बाय डी टी की इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ऑफ डी डेल्टा बाय डी टी। और ये डी डेल्टा बाय डी टी क्या है, चेंज इन एंगल। चेंज इन एंगल क्या होता है, स्पीड। ऐसे ही हो गया ना, चेंज इन एंगल क्या बनेगा आपके पास, स्पीड। तो ये आपको डी डेल्टा बाय डी टी कौन सी स्पीड होती है, डी डेल्टा बाय डी टी वो स्पीड है जो कि आपकी मशीन की स्पीड है, यानी कि रोटर की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डेवलप्ड इन द स्टेटर ऑफ अ मशीन। समझ आ गई आपको बात। डी डेल्टा बाय डी टी कौन सी है स्पीड, ये कौन सी स्पीड है, ये ये रिलेटिव स्पीड है। ये रिलेटिव स्पीड है किसके साथ, किसकी रिलेटिव स्पीड है, जो आपका रोटर मूव कर रहा है, मशीन की जो रोटर आपका मूव कर रहा है, इसकी रिलेटिव स्पीड है किसके साथ, सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये वो रिलेटिव स्पीड है। अच्छा एट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऊपर आपको पता है कि जो रोटर है, स्टेबिलिटी आप कब अचीव करते हैं, आपका मशीन कब स्टेबल होती है, जब वो आप एक सिंक्रोनस कंडीशन में हो। और मशीन आपकी सिंक्रोनस कंडीशन में कब होती है, जब उसकी रोटर की जो स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है वो किसके साथ अलाइन हो जाती है, वो अलाइन हो जाती है सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, अगर वो रोटर की स्पीड के साथ क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। सिंक्रोनाइज होने का मतलब क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही स्पीड के ऊपर मूव करें। ये याद होगा आपको, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि सिंक्रोनस होने का उनका क्या मकसद है कि वो दोनों तो मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, एक स्पीड के साथ मूव कर रही हैं। यानी कि अगर ये बस भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ये बस भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, अगर मैं ये कहूं इन दोनों के दरमियान रिलेटिव स्पीड कितने, डिफरेंस कितना है, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस कितना है इन दोनों के दरमियान, कोई है या नहीं है, जीरो है ना। अगर इसकी स्पीड भी 100 है और इसकी स्पीड भी 100 है तो रिलेटिव डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कितना है, जीरो। सिमिलरली ये जो आपके पास डी डेल्टा बाय डी टी है, ये बेसिकली आपको क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है रिलेटिव स्पीड बिटवीन व्हाट, ये आपको इंडिकेट करता है रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर ऑफ अ मशीन एंड द सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड एट अ सिंक्रोनस पोजीशन वो क्या होती है, जीरो। सिंक्रोनस पोजीशन के ऊपर उसकी क्या वैल्यू होती है, जीरो। और आपका जब मशीन सिंक्रोनस पोजीशन में होती है उस वक्त वो क्या होती है, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेबिलिटी के ऊपर या एट स्टेबल कंडीशन के ऊपर आपकी जो डी डेल्टा बाय डी टी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, जीरो। अगर डी डेल्टा बाय डी टी की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल होगा, आप देखें तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये जो 2 पाई एफ नॉट ओवर एच है, ऑटोमेटिकली जब हम इसको जीरो के साथ देखेंगे तो इट विल बिकम जीरो एंड ओनली द इंटेग्रल पार्ट विल लेफ्ट, और इंटेग्रल पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इंटेग्रल पाथ आ गया, कहां से कहां तक, पी एम माइनस पीई डी डेल्टा तक। और ये बेसिकली कहां से कहां आपको इंटेग्रल पार्ट डिनोट कर रहा है, वो बता रहा है कि कहां से लेके तक, डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा तक एक पूरे पाथ को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, आपका ये एक इंटेग्रल पाथ जिसको हम देख रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जो मशीन है उसके दरमियान जो डिफरेंस है पी एम माइनस पी, अगर ये डिफरेंस आपको पता है नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मशीन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और अगर इनके दरमियान डिफरेंस होगा तो क्या होगा, आपकी मशीन क्या करेगी, एक्सेलरेशन गेन करेगी। तो ये बेसिकली इक्वेशन आपकी गवर्न करती है क्या, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। अच्छा अब है क्या कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया में क्या रिक्वायरमेंट है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपसे ये कहता है कि आपका जो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन है दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ डिसेलरेशन। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप ये देखें पावर एंगल कर्व के ऊपर, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन कहां से कहां तक है, ये देखिएगा मैंने ये रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है, डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 1 तक जो है वो आपके पास एरिया ऑफ एक्सेलरेशन है।
और ये एरिया ऑफ एक्सेलरेशन क्यों है? ये एरिया ऑफ एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये डेल्टा नॉट जो एंगल है, इस एंगल के ऊपर आपकी मशीन इनिशियली सिंक्रोनाइज हुई थी, यानी कि आपकी जो रोटर की फील्ड थी वो आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज थी। किस एंगल के ऊपर? डेल्टा नॉट के ऊपर। और योर मशीन वाज रनिंग इन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। लेकिन फिर क्या हुआ? एक डिस्टर्बेंस आई। वो डिस्टर्बेंस की वैल्यू कितनी थी? वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस थी। आपकी जनरेटर का इनपुट ज्यादा हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? अब आपके जो मशीन के ऊपर इस वक्त मैकेनिकल इनपुट PM0 नहीं रहा, जिसकी वजह से आपका रोटर एक खास मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा था, बल्कि डिस्टर्बेंस आने की वजह से मैकेनिकल इनपुट बढ़ गया और मैकेनिकल इनपुट की वैल्यू अब कितनी हो गई है? PM1। जैसे ही आपके जनरेटर के ऊपर मैकेनिकल इनपुट की वैल्यू PM1 ज्यादा हुई तो उससे क्या हुआ? उससे उसकी क्या हुई? स्पीड ज्यादा होना शुरू हुई। जैसे ही उसकी चेंज इन स्पीड हुआ, एक्चुअली उसने एक्सेलरेशन गेन कर ली, चेंज इन स्पीड हुई और चेंज इन स्पीड पॉजिटिव थी। पॉजिटिव स्पीड की वजह से उसने क्या गेन किया? एक्सेलरेशन। जैसे ही आपकी मशीन ने एक्सेलरेशन गेन किया तो उसका जो एंगल है वो क्या शुरू होना ज्यादा, उसका जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है वो क्या होना स्टार्ट हो गया? ज्यादा। तो अब आपका एंगल डेल्टा नॉट नहीं रहा, उसकी चेंज इन आपकी मैकेनिकल इनपुट की वजह से उसका एंगल जो है स्टूडेंट्स वो क्या होना शुरू हो गया? इंक्रीज होना शुरू हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? जितना आपने उसको एक्सेलरेट किया उतना ही इंक्रीज हुआ ना। कितना आपने उसको एक्सेलरेट किया? PM1। तो PM1 एक्सेलरेट किया और एक पॉइंट के ऊपर आके, इस पॉइंट के ऊपर अब आपका एंगल कितना हो गया? डेल्टा1। यानी कि PM1 आपने जब उसका इनपुट बढ़ाया तो उसके इस इनपुट बढ़ने से आपकी जो मशीन की एक्सेलरेशन बढ़ी और उस एक्सेलरेशन बढ़ने से क्या हुआ? उसका जो एंगल है वो क्या हो गया है? रोटर एंगल कितना हो गया? अब उसका डेल्टा1 हो गया। अब अगर आपका डेल्टा1 चेंज हुआ तो इसकी वजह से आपका क्या हुआ? आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी चेंज हुई। डेल्टा1 की वजह से, डेल्टा की वजह से इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैसे चेंज होती है? यू नो दैट कि आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट की जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू EV/X साइन डेल्टा है। तो जैसे ही आपका डेल्टा नॉट से डेल्टा1 की तरफ मूव हुआ तो ऑटोमेटिकली डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज है। डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आपकी PE की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई है? इंक्रीज। तो एट PM1 जब आपकी इनपुट ये हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि एट PM1 आपकी मशीन का जो आउटपुट पावर हो गई वो इज इक्वल टू PE1 हो गई। और PM0 से लेके PM1 तक आपकी मशीन ने क्या किया? एक्सेलरेट। अभी आपकी मशीन ने क्या किया है? एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट क्यों किया? एक्सेलरेट उसने इसलिए किया क्योंकि जैसे ही आपने उसकी इनपुट पावर बढ़ाई, अगर वो क्या करेगी, उससे उसने ज्यादा स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो आउटपुट पावर उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी? ज्यादा। जब आपकी आउटपुट पावर कितनी हो गई? PM1 के बराबर, यानी कि आउटपुट पावर ज्यादा हुई। और क्या कितनी ज्यादा होनी है? उसने आउटपुट पावर ने कितना ज्यादा होना है? PM1 के बराबर। जब उसकी आउटपुट पावर किसके बराबर इक्वल हो गई? PM1 के बराबर। उस वक्त एंगल कितना हो गया? λ1। अच्छा, आपकी आउटपुट पावर तो बराबर हो गई है PM1 के इस वक्त, लेकिन इस वक्त क्या प्रॉब्लम है? आउटपुट पावर आपकी PM1 के इक्वल हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? जो आपकी स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं है। सिंक्रोनस स्पीड क्यों नहीं है? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड तो आपकी इस वक्त थी जब आप PM0 पे थे। अभी यहां तक पहुंचने में आपकी जो स्पीड है वो क्या नहीं है? वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं है, बल्कि अब बन चुकी है सुपर सिंक्रोनस स्पीड। तो ये जो एरिया बना यहां से लेके यहां तक, इसको हमने कह दिया एरिया ऑफ एक्सेलरेशन। और इस एरिया के बाद आपकी मशीन ने दोबारा अचीव करना स्टार्ट की सिंक्रोनस स्पीड, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इस पॉइंट के बाद आपकी जो मशीन है उसने क्या करना शुरू कर दिया? डिसेलरेट कर दिया, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हाउ इट स्टार्ट डिसेलरेटिंग। एंड द मेन रीजन बिहाइंड इज दैट कि इस पॉइंट के बाद आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर तो ज्यादा होगी और आपकी मैकेनिकल इनपुट पावर कम होगी। जब आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर ज्यादा हो और मैकेनिकल इनपुट पावर कम हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन जो होती है वो डिसेलरेट करना शुरू कर देती है। अब आपकी मशीन ने डिसेलरेट किया और डिसेलरेट होने की वजह से जब आप इस पॉइंट डी पे पहुंचे तो उस वक्त आपकी जो स्पीड है, जो कि पहले यहां से यहां तक तो स्पीड थी वो कौन सी थी? सुपर सिंक्रोनस। यहां से आपकी स्पीड जो थी वो कम होना स्टार्ट हुई और यहां पे आके दोबारा वो सिंक्रोनस स्पीड बन गई है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो स्पीड बन गई है सिंक्रोनस स्पीड। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी स्पीड जो थी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा थी, उसको हमने कौन सी स्पीड कहा? सुपर सिंक्रोनस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी वो स्पीड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक, तो जब इधर से इधर तक कम हुई तो आपकी, यानी कि यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही थी, यहां पे जब स्पीड कम हो रही थी, तो जब स्पीड बढ़ रही हो तो वो कहते हैं एक्सेलरेशन, और जब आपकी स्पीड कम हो रही हो तो हम क्या कहते हैं? डिसेलरेशन। तो इसलिए हमने कहा कि जो A1 है, जिस एरिया को हमने ये डिस्क्राइब किया, इस एरिया को हमने कहा ये है आपका एरिया ऑफ एक्सेलरेशन। और ये जो ये रीजन है, आपका रीजन है,
जहां से आपकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स एंड स्टार्ट गोइंग अगेन टुवर्ड्स सिंक्रोनस स्पीड, वो एरिया हमने डिफाइन कर दिया एरिया ऑफ डिसेलरेशन। सो इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपसे ये डिमांड करता है, या पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपसे ये डिमांड करती है कि आपका एरिया ऑफ एक्सेलरेशन किसके इक्वल होना चाहिए, एरिया ऑफ डिसेलरेशन के। सो हम यहाँ पे क्योंकि डेरिवेशन अभी कर रहे हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया की, सो इफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया स्टेट्स दैट इन पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ डिसेलरेशन। तो अब एरिया ऑफ डिसेलरेशन को अगर हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है ओवरऑल, जो यहाँ पे पावर की इक्वेशन आ रही है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे, किसमें डिकम्पोज कर देंगे, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन के लिए और एरिया ऑफ डिसेलरेशन के लिए। एग्रीड? हम इसको किसमें डिसइंटीग्रेट कर देंगे, हम इसको एरिया ऑफ एक्सेलरेशन और एरिया ऑफ डिसेलरेशन के लिए इसको हम ब्रेक कर देंगे। अगर हम इसी को लिखें, अभी हमने लिखा हुआ है इसके इंटीग्रल कहां से कहां लिखे हुए हैं, हमने इंटीग्रल लिखे हुए हैं लैम्डा नॉट से लेके लैम्डा तक, यानी कि हमने कहां से लिखे हुए हैं, लैम्डा नॉट से लेके लैम्डा तक हमने इसके इंटीग्रल लिखे हुए हैं। अगर हम इसे एरिया ऑफ एक्सेलरेशन और एरिया ऑफ डिसेलरेशन में डिसइंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर ये कैसे लिखेंगे, देखिएगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन कहां से कहां तक लैम्डा है, लैम्डा नॉट से लेके कहां तक एक्सेलरेशन हुई थी, लैम्डा 1 तक, वेरी गुड। और आपकी डिसेलरेशन कहां से हुई थी, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा मैक्स तक। तो आपने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा, लैम्डा नॉट टू लैम्डा 1 pm1 माइनस पीई डी लैम्डा इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ डिसेलरेशन है लैम्डा 1 टू लैम्डा मैक्स pm1 माइनस पीई डी लैम्डा। एग्रीड? तो क्या हुआ, अब आपका ये एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिफाइन हो गया। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन को जो इक्वेशन बता रही है वो ये बता रही है, और एरिया ऑफ डिसेलरेशन को कौन सी इक्वेशन बता रही है, वो ये बता रही है। सो इसको हमने कह दिया A1, इसको हमने कह दिया A2। सो इक्वल एरिया क्राइटेरिया आपसे ये डिमांड करता है कि आपका जो A1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, A2। और अगर आपका A1 A2 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मशीन है वो क्या हो गई है, वो अनस्टेबल हो गई है। So to remain in a stability condition, our A1 should be equal to A2. So thank you very much students. I hope कि आपको derivation of equal area criteria जरूर क्लियर हुई होगी अभी तक।